Okay, good evening all of you. And then next one, that is the number of salt in our syllabus. And number of salt में सबसे पहला that is the common salt NaCl. And then how can you prepare the NaCl? We know that we have studied in the previous classes 6, 7, 8, 9. We know that कि NaCl with the help of number of shallow tank that will be create near the sea, and with the help of evaporation process we can prepare the salt. And further iodized with the help of addition of iodine, number of processes are there with the help of prepare the packing salt. Main thing is that the main preparation is that with the help of evaporation of the sea water we can prepare the NaCl. That is the first one. That is the salt जो हमारे syllabus में है वो NaCl sodium chloride बताया गया. And next one, that is the NaOH. That is the sodium hydroxide. And the sodium hydroxide, the common name is the caustic soda. Caustic soda इसका common name mention करता है. And the sodium hydroxide, how can you prepare that? And the preparation is that in our syllabus, that is the electrolysis of the NaCl, aqueous NaCl. Electrolysis NaCl plus water, electrolysis process करते हैं, electricity pass out करते हैं to give rise the NaOH plus hydrogen plus chlorine, we can say that. And that preparation of the sodium hydroxide what is the way, one by one explain करता हूँ. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो हमारा होता है जिसको हमने क्लोरल एल्कली प्रोसेस भी दिया गया नाम. क्लोरल एल्कली वर्ड शोज दैट इससे क्लोरीन को भी बनाया गया और एल्कली को भी प्रिपेयर किया गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी प्रिपेयर किया गया. एंड how can you prepare that? Simple. Again कंटेनर लेके चलता हूँ अपना. That is cathode, that is anode, and this में electricity pass out कर रहा हूँ, negative and positive. We can say that इसमें मैंने लिया अपना NaCl and water. ठीक है, NaCl प्लस वाटर में से करंट को पास आउट किया. अब जैसे इसमें से करंट पास आउट होता है, NaCl टूटता है किसमें, NaCl पॉजिटिव से नेगेटिव में, और वाटर विल स्प्लिट अप इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. Okay, and we can say that इस solution में दो cation बने, Na positive and positive. That we know that cation interacts towards the cathode. कैटायन कैथोड की तरफ जाता है. हाँ जी, कैथोड पर जाकर इन दोनों में से किसी एक को रिड्यूस किया जाएगा. H पॉजिटिव को रिड्यूस कर दिया जाता है, Na पॉजिटिव को वापस सोल्यूशन में भेज दिया जाता है. तो वी कैन से दैट कैथोड पे जो रिएक्शन चली एट कैथोड H positive pick the electron because cathode always contain reduction reaction. H positive electron gain करता है, hydrogen atom बना, one hydrogen atom doesn't exist, combined to the another hydrogen atom and to form H2 gas, and that will be liberate from the cathode. ये कैथोड से लिबरेट हो गई. अच्छा, ऐसी एट एनोड. एनोड पे क्या कहानी चलती है? एनोड पे वी कैन से दैट हमारे पास दो H पॉजिटिव OH नेगेटिव. इन दिस वे इसके पास दो कैटायन जाते हैं. एक जाता है जी हमारे पास Cl नेगेटिव, एक जाता है OH नेगेटिव. इन दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडाइज किया जाएगा. किसको? Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, OH नेगेटिव वापस सॉल्यूशन में भेज दिया जाता है. हाँ जी, OH नेगेटिव वी कैन Cl नेगेटिव दैट विल बी द ऑक्सीडाइज्ड एंड लूजेस द इलेक्ट्रॉन. And chlorine atom doesn't exist, combined with the another chlorine atom and to form Cl2 gas. That will be liberate at the anode. ये यहाँ पर एनोड से रिलीज होती है. तो सॉल्यूशन में हमारे पास इधर से कैथोड से कौन आया? कैथोड से आया Na पॉजिटिव, एनोड से आया OH नेगेटिव. ज्वाइन टुगेदर दोनों हाथ मिलाते हैं and to form the sodium hydroxide. So that is the preparation, and that the whole process is called chloral alkali प्रोसेस. बिकॉज क्लोरीन की प्रोडक्शन हो रही है, अल्कली बना रहे हैं जी हम अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड. दैट इज द अल्कली. व्हाट इज द मीनिंग अल्कली? वाटर सोल्युबल बेसिस. वो बना रहे हैं. दैट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोरल alkali process. That preparation we can say that is preparation of the NaOH. NaCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह उसको बनाया गया. We can use that the chloralkalis में जो हाइड्रोजन गैस है उसको फर्दर यूज कर सकते हैं नंबर प्रोसेसेस के लिए. क्लोरीन गैस जो बनी उसको यूज कर लेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नंबर ऑफ केमिकल्स की प्रोडक्शन, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है जी. तो यूजेस वी हैव लर्न दैट. And then next one, that is the sodium hydroxide. Next one जो हमारे पास salt आता है, that is the we can say that is the लेके चल रहा हूँ अपना sodium hydroxide. We can say that is the sodium carbonate, that is the washing soda.
सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को अनाउंस कर रहा हूं. एंड व्हाट इज द वे? अगेन विद द हेल्प ऑफ सोल्वेज प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ सोल्वेज प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर दैट द वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को हम प्रिपेयर करते हैं. एंड व्हाट वाज दैट? एक वर्ड यूज कर रहा हूं, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन. वर्ड यूज किया मैंने अपना अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन. अमोनिकल अमोनिया, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस वाटर, नमक और पानी के मिक्सचर को प्रोनाउंस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. तो कार्बोनेटेड वी कैन से दैट अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बोनेटिंग टावर होता है, CO2 गैस को टॉयलेट्स के थ्रू पास आउट किया जाता है. एंड टू फॉर्म द व्हेन द अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, टू फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये दोनों चीजें फॉर्म होती है हमारी. तो अमोनियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर देते हैं इन द फर्स्ट प्रोसेस. एंड द सेकंड स्टेप में NaHCO3 को हीट किया जाता है, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए, इट इज द सेम थिंग. ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट देते हैं एंड टू फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2. And in the third step, sodium carbonate Na2CO3 combined with the 10 molecule of water to form the Na2CO3.10H2O. So that the whole process is called the Solvay's process. इस पूरे प्रोसेस को Solvay's process का नाम दिया गया, जिससे हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं अपना. दैट इज द होल प्रोसेस. तो सोडियम कार्बोनेट को फर्दर कंबाइन करते हैं 10 मोलेक्युलर वाटर से, तो दैट इज द सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. दो वर्ड यूज करते हैं अपना, हाइड्रेटेड, अनहाइड्रस. सो दैट द हाइड्रेटेड मींस वी कैन से दैट कि जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं. अनहाइड्रस का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए. एक वर्ड फिर हम लेके चलते हैं कि जब इसको हम हीट देते हैं अपना सोडियम को बाइक जो वॉशिंग सोडा है उसको अगर हीट कर देते हैं अपना, सो दैट उस केस में कहता है कि क्या होता है 10 के 10 मोलेक्युलर वाटर इवेपोरेट हो गए. एंड दैट इज कॉल्ड द अनहाइड्रस सोल्ट. और 1 मार्क डेफिनेशन, 1 मार्क टर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड द सोडा ऐश. When the 10 molecules of evaporate, when the 10 molecules of releases from the washing soda, the left behind Na2C, just Na2CO3 is called the soda ash. Okay, that is the preparation of the सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इंप्लीमेंट सेकंड, नेक्स्ट वन जो लेके चल रहा हूं बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो में, दैट इज द बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो लेके चल रहे हैं दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस. ये वाला जिसमें जो ब्लू सामान, यही आपकी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन है. भी हमने एक रिएक्शन लर्न करना है, सोल्वेज प्रोसेस, जिससे हमने वॉशिंग सोडा को बनाया. अगर हमें एक प्रोसेस लर्न होता है, देयर आर 3 प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा, बट बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन जस्ट फर्स्ट वन है, ये जो आपका बना. NaCO3 is called the sodium bicarbonate का कॉमन नेम जो है वो बेकिंग सोडा ही है. तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द बेकिंग सोडा. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन. वी कैन सो दैट वी कैन कंसीडर दैट अगर प्रिपरेशन आती है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ द बेकिंग सोडा. आपको सिंगल प्रिपरेशन यही देनी है बस. बट इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो ये आपको तीनों प्रोसेस जो कार्बोनेटिंग टावर जिस प्रोसेस को सोल्वेज प्रोसेस बोला जाता है, उसमें इस वॉशिंग सोडा को बनाया जाता है. ओके, तो दैट इज द स्टोरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वॉशिंग सोडा, जिसमें इंक्लूड हो जाता है फर्दर साथ ही हमारे पास बेकिंग सोडा. ओके, एंड नेक्स्ट वन दैट इज द वी कैन से दैट वी हैव ब्लीचिंग पाउडर. That is the bleaching powder. That is the formula is calcium oxychloride. Next one जो word use किया मैंने अपना, that is the bleaching powder. And the bleaching powder, that is the formula, that is CaOCl2. Okay, and then calcium hydroxide. Calcium hydroxide के ऊपर से हम क्लोरीन गैस को पास आउट करते हैं to form the calcium oxychloride, CaOCl2 plus water. We can say that is the preparation of the bleaching powder. That is the preparation of the bleaching calcium oxychloride जिसको बोला गया. That is the preparation of bleaching. Number of uses that वो भी सिलेबस में रहेंगे. Then we will learn that in a separate section. But अभी we are preparation of the salt. So that in this way we can prepare the bleaching powder. And the next one, bleaching powder के बाद next one जो आता है हमारे पास, that is the preparation of the bleaching powder के बाद next preparation, that is the POP, that is the plaster of Paris. Okay, plaster of Paris. We know that the decoration में, plastering में, plaster of Paris. How can you prepare that? Again, that is the calcium sulfate 2H2O.
that is the meaning of calcium sulfate dihydrate. That is the formula of the gypsum. ये फार्मूला जी जिप्सम का है. इसको हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, बट अबव 220 डिग्री सेल्सियस. हाँ जी, हीट करते हैं. कैल्शियम सल्फेट डोट हाफ H2O, दो में से हाफ गया, बचा कितना? 1.5 ये निकले, लिख रहा हूं 1.5 वाटर. ये दैट इज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड द POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो दिस वी कैन प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस, बनाते हैं हम अपना. ओके, एंड वी कैन से दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ POP. अब वो कहता है कि मेंशन कर रहा हूं स्पेशली 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस. 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नॉर्मली वी कैन से दैट कि अगर हाई टेम्परेचर को कैल्शियम सल्फेट को हीट कर दें तो क्या होगा? तो कहते हैं कि दोनों के दोनों जो वाटर मॉलिक्यूल थे ये इवेपोरेट हो जाएंगे, और जब दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे हाफ में बचेगा सिर्फ मेरे पास क्या? CaSO4. एंड CaSO4 इज कॉल्ड द डेड बर्न्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड दैट नॉट यूजफुल फॉर अस. सो दैट इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा ना हो. मोस्टली वी कैन से दैट एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर वी कैन से दैट नॉट मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस. तो दिस वे वी कैन प्रिपेयर द कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP. तो ऑल दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट. मोस्टली चैप्टर हैव बीन कवर्ड, एंड द लास्ट वन दैट इज जो लेके चल रहा हूं, एक वर्ड यूज करते हैं अपना, हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड सॉल्ट का मीनिंग रहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द सोल्ट. अब मैंने मेंशन किया जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल लगाए, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड. और जब मैंने 10 के 10 निकाल दिए तो मैंने इसको नाम दिया Na2CO3, दैट इज कॉल्ड द सोडा ऐश. ओके, एंड इन द केस ऑफ CaSO4 का एग्जांपल लेता हूं, एंड दैट वाज द लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था हाइड्रेटेड अनहाइड्रेटेड का. तो यू शुड नो दैट CaSO4 डॉट 2H2O दैट इज द हाइड्रेटेड सोल्ट. और जब मैंने इसको काफी हीट दे दी, दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गई, दैट इज कॉल्ड द अनहाइड्रेटेड कॉपर कैल्शियम सल्फेट. ऐसे ही इंपैक्ट भी पड़ता है. कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं ब्लू इन कलर, पर जैसे ही उसको टेस्ट ट्यूब में रख के हम हीट दे देते हैं और पानी वाटर के 5 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो इट बिकम्स कलरलेस, इट बिकम्स व्हाइट. सो दैट इज द इम्पैक्ट की हीटिंग इफेक्ट से भी जो उसके नेचुरल जैसे ही वाटर रिलीज हो जाता है उसके कलर में भी चेंज आ जाता है. FeSO4 जो लेके चलते हैं दैट इज 2H2, अगेन वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं उसके साथ. देन जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए तो दैट इज कॉल्ड द अनहाइड्रेटेड. तो दैट इज द चेंजेस इन कलर आल्सो व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस. तो दैट इज द लास्ट टॉपिक. So we have finished the chapter, and then we will do that assignment on this salt. Okay, so thank you. We will meet the next video.